Hello students, how are you? So we have completed our 4 units and today we are going to start our 5th unit and it is a very interesting unit as usual. Please enjoy it. Let's begin it. It's about the snake and the mirror. Before we start the unit, let's read this. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको मिरर में आप अपने आप को देखना अच्छा लगता है? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? क्या कभी आपने कोई ऐसे एनिमल जैसे कि डॉग, कैट और बर्ड मिरर में देखते हुए आपने देखा है? आप क्या सोचते हो कि बर्ड्स एनिमल्स क्या देख रहे होते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. There are 3 characters in this story, and the characters are a doctor, a snake, and a. Now read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या आपके बॉडी के कोई पार्ट के अराउंड कोई स्नेक ने आपको कोयल किया है? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. तो ये क्वेश्चन किसने किया था? होम्योपैथी के डॉक्टर, जिसे क्या बोलते हैं हम? होम्योपैथ. The topic came up when we were discussing snakes. हम लोग स्नेक्स का डिस्कशन कर रहे थे, तब डॉक्टर ने पूछा कि आप में से किसी के बॉडी के अराउंड कोई एक पार्ट के अराउंड स्नेक ने कभी आपके अराउंड कोइल किया है? We listened attentively as the doctor continued with his tale. डॉक्टर ने अपनी जो टेल है, स्टोरी है, वो कंटिन्यू करी. It was, अब डॉक्टर बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं. It was a hot summer night about 10 o'clock and I had my meal at the restaurant and returned to my room. So it was a summer night and naturally it was 10 o'clock. It's too cool in summer. And he finished his meal at the restaurant and he returned to his room. I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तब मैंने अबाव इट मीन्स ऊपर, ऊंचे, ऊपर इट मीन्स कोई एक चीज दूसरी चीज से टच करके रखा हो, वो वाला ऊपर नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाली साइड से कोई आवाज आई. द साउंड वॉज अ फेमिलियर टू मी. फेमिलियर परिचित, नोन, इसका ऑपोजिट अनफेमिलियर होता है. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. One could say that the rats and I shared the room. और क्यों उसको फेमिलियर साउंड लगी? क्योंकि he and rats shared the room. It means दोनों एक ही रूम में रहते थे. कौन कौन? Rats and हमारे डॉक्टर. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. टेक आउट उसका पास्ट टेंस, टुक आउट. माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने मैचेस का बॉक्स निकाला और लाइट किया. क्या लाइट किया? केरोसिन लैम्प. एंड वेयर वॉज द केरोसिन लैम्प? इट वॉज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड एंड इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. The house was not electrified. There was no electricity in the house and it was a rented room. It was not his own room. He had taken it on rent. I had just set up medical practice and my earnings were meager. Meager यानी small in quantity, बहुत ही कम. तो मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी अर्निंग मीगर थी. मीगर यानी कम. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे suitcase में कितने पैसे थे? Only 60 rupees. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Solitary means only one. I had only one black coat and I was wearing it at the time.
I took off my black coat, white shirt, not so white vest and hung them up. मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला और वाइट शर्ट निकाला. वेस्ट से वो इतना वाइट नहीं रहा था, इट मीन्स मेला घेला हो गया था. एंड hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one small fencing the open yard. ये रूम आप देख सकते हो, ऐसा कुछ हुआ होगा. तो इतना छोटा सा रूम था, उसने अपनी दोनों डोर्स खोल दिए. It was an outer room with one wall facing the open yard. एक वॉल है ये ओपन यार्ड में, आप देख रहे हैं मेरा कर्सर भी यहाँ पे जा रहा है, ओपन यार्ड में खुल रहा था. It had a tiled roof. The roof was tiled. There were tiles on the roof. तो रूफ के ऊपर टाइल्स थी. It had tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. Gable, it means upper part of a wall below a sloping roof. ये जो sloping roof के नीचे जो पार्ट है, इसको देखो यहाँ पे उसका पिक्चर भी निकाला गया है. इसे क्या बोलते हैं? गैबल बोलते हैं. There was no ceiling. कोई सीलिंग छत नहीं था. There was a regular traffic of rats to and from the beam. और बीम के इर्द गिर्द किस चीज का ट्रैफिक रहता था? रेट्स का ट्रैफिक रहता था. I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिछाना बिछाया और उसको वॉल के पास में ले गया. I lay down but I could not sleep. I got up and went out of the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. समर की नाइट थी तो I tried to sleep but I couldn't. हमारे वो जो डॉक्टर साहब हैं वो सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं सके, इसलिए वो वरंडा में गए थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए. एंड ऐसा लग रहा था जैसे विंड तो टाइम ऑफ करके चले गए हैं, कभी विंड का कोई पता नहीं था. I went back into the room and sat down on the chair. ये ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन है वो थोड़ा रिपीटेशन हो गया है, so please don't mind it, okay? I went back into my room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, Materia Medica. तो फिर मैंने क्या किया, बाहर तो हवा नहीं आ रही थी, घर में रूम के अंदर में सो नहीं सकता था, इसलिए मैं वापस रूम में चला आया और मैंने मेरे बेड के बीनीथ बॉक्स, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे, बीनीथ यानी नीचे. ये सब प्रेपोजिशंस है, ये हमें डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि 10th में आपको प्रेपोजिशंस के हिसाब से ब्लैंक्स पूछी जाती है. ओके, I opened the box beneath the table and took out a book. कौन सी बुक निकाली? Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and large mirror. A small comb lay beside the mirror. फिर मैंने तो बुक निकाली लेकिन टेबल पर क्या था? There was a large mirror and a small comb. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. Tempted तो लालच हो जानी, इच्छा हो जानी. तो जब भी कोई आदमी मिरर के पास से पसार होता है तो उसको टेम्पटेशन होती है, लालच होती है, इच्छा होती है कि चलो मिरर में एक बार अपना फेस देख ले, इतना अच्छा मिरर था. I took a book. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look हैंडसम. ये उन दिनों की बात है जब मैं ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी था. एडमायर એટલે प्रशंसा करना, एडमायरर इट मीन्स प्रशंसा करने वाला आदमी, एडमायरर. मैं ब्यूटी का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और मैं ये मानता था कि मुझे हैंडसम दिखना चाहिए. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. मैं यंग था, अनमेरिड था और मैं डॉक्टर था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रेजेंस, मेरी आउटलुक अच्छी होनी चाहिए. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो फिर
मैं तो ब्यूटी का तो मैं प्रशंसक पहले से ही था, तो मैंने अपने आप को मिरर में देखा, वहां पे कोम्ब था वो लिया और कोम्ब को अपने हेयर पे रन किया और मेरी जो पार्टिंग थी वो अच्छी कर दी, एडजस्ट कर दी, जिसके हिसाब से वो पार्टिंग स्ट्रेट लगे, नीट लगे, क्लीन लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबाव, फिर मैंने वही साउंड सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, लेकिन मैंने इसको नोटिस नहीं किया क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब को ऐसा लगा होगा कि ये तो रैट्स की आवाज है। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तब मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली एंड आई ग्रो थिन मस्टाच टू लुक मोर हैंडसम दिखने के लिए मैं क्या करूंगा, तो कि मैं डेली शेव करूंगा और फिर मैं छोटी सी थीन मस्टाच भी अपने फेस पे रखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर, मैं तो बैचलर था, डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया। आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गई ना? It was an attractive smile, and my smile was not a normal smile. It was an attractive, आकर्षक smile था। I made another earth-shaking decision. Earth-shaking, it means जमीन को, धरती को हिला देने वाला डिसीजन मैंने लिया। तो ऐसा तो ह्यूमरस स्टोरी है, ऐसे कोई डिसीजन करता है और जमीन हिल जाती है, धरती हिल जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन इट इज अ ह्यूमरस फनी स्टोरी, दैट्स व्हाई आवर डॉक्टर सेज मैंने बहुत ही बड़ा, अर्थ शेकिंग इट मीन्स बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। मैं हैंडसम तो हूं, लेकिन मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए मैं हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखूंगा, स्माइलिंग फेस में रखूंगा। I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. Again came that noise from above. अरे आफ्टर ऑल मैं डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, हैंडसम हूँ, फिर से वो वाली आवाज आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं रूम के अप और डाउन, यहां से वहां मैं चलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, आई वुड मैरी। फिर एक दूसरा लवली सुंदर सा विचार मेरे माइंड में से पास हुआ। एंड व्हाट वाज दैट ब्यूटीफुल थॉट? आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर who had plenty of money and good medical practice. मैं एक डॉक्टर लेडी से शादी करूंगा जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी हो, तो उससे मैं शादी करूंगा। शी हैड टू बी फैट, दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो फैट होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, इसका रीजन वैलिड है। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. वो फैट लेडी होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं और मुझे भागना पड़े तो वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग ना सके, इसीलिए उसे मोटी लेडी चाहिए थी, मोटी फैट वुमन चाहिए थी। क्यों फैट वुमन चाहिए थी? क्योंकि अगर वो कोई मिस्टेक करे तो वो लेडी उसके पीछे भाग ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in a chair in front of the table. There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी अभी आपको पता चल जाएगा। There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड। सडनली एक दूसरी वाली आवाज आई। वो आवाज कैसी थी? जैसे रबर की ट्यूब आप गार्डन में जब वाटरिंग करते हो तब जिस ट्यूब का यूज करते हो ना, ऐसी ट्यूब किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दी हो, ऐसी आवाज आई। Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned that fate snake, हजी तो देखो, कोई टू थिंग्स, दो एक्शंस साइमल्टेनियसली एक साथ होती है तब इसका यूज करते हैं नो सूनर। आपको 12th तक ये नो सूनर वाला जो है यूज आपको आएगा। तो नो सूनर हैड आई टर्न
अभी तो मैंने क्या है वो देखने के लिए अपनी नेक को पीछे नहीं किया था. अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulders. तो एक फैट स्नेक, वो तो फैट लेडी की बात सोच रहे थे, इसके बदले कौन आ गया? फैट स्नेक आ गया और चेयर के ऊपर से मेरे शोल्डर पे उसने लैंड कर दिया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेर साइमल्टेनियस. स्नेक ने मेरे ऊपर लैंडिंग की और मैंने पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाई. दोनों चीजें साइमल्टेनियस थी. आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. क्या कुछ नहीं किया? मैंने जंप नहीं किया, ट्रेम्बल नहीं किया. ट्रेम्बल करना इट मीन्स ध्रुजना. आई डिडंट क्राई. देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. ऐसी कुछ करने का टाइम ही नहीं था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. तो तब तक तो स्नेक है ना, तो मेरे एल्बो से ऊपर आ गया था. The hood was spread out. Its head was hardly 3 or 4 inches from my face. और उसका हेड मेरे फेस से 3 or 4 inches ही दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. मैं तो जैसे स्टोन में बदल गया था, मैं पत्थर का हो गया था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. मेरा बॉडी स्टोन हो गया था, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. The door opened into darkness and the room was surrounded by darkness. Electricity भी नहीं थी. So the room was in the darkness and there was darkness outside the room. In the light of lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो मैं तो स्टोन की कोई इमेज हो ऐसे बैठा रहा. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. तो जब हम अपने सामने अपनी मृत्यु देखते हैं तो हम किसे याद करते हैं? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट. मैंने कुछ ऐसा कह दिया. अभी मैंने सोचा था ना कि मैं मोटी लड़की से शादी करूंगा, मैं शेव अब डेली करूंगा, मैं छोटी सी मस्टाच भी रखूंगा, ऐसा ऐसा मैंने सोचा था. और इसके पहले मैंने कुछ ऐसा कह दिया है कि जो ईश्वर को पसंद नहीं आया है. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. ये बड़ा वाला स्नेक उसने लेफ्ट आर्म में कोइल किया था, तो naturally there was pain. Pain was very much natural. It was as if a thick leaden rod. Leaden it means lead, it means सीसा. ये जो है ना metal. There was some pain in my left arm as if a thick leaden rod, no, rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. So such metals were crushing my arm. ऐसा मुझे feel हो रहा था. The arm was beginning to be drained of all strength. और ऐसा लग रहा था कि मेरे आर्म में से मेरे हाथ में से मेरी स्ट्रेंथ थी वो ड्रेन हो गई है. इट मीन्स बाहर निकल गई है. व्हाट कुड आई डू? अब मैं क्या कर सकता हूं? तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं. बाद में नेक्स्ट ट्यूसडे को श्योरली मिलेंगे. इंटरेस्टिंग लेसन है ना, अच्छे वाला लेसन है ना. तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, पढ़ना. और नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए stay home, stay safe, take very good care of yourself and take care of your parents. Thank you very much and goodbye, students.